بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان واٹس ایپ گروپ پر سخت بحث ہوئی۔ علیمہ خان نے سوال اٹھایا کہ بانی پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود علی بخاری کو بانی پی ٹی آئی کے پاس کیوں بھیجا گیا۔ سوال پر دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بحث اتنی بڑھ گئی کہ گروپ کے کئی اراکین حیران رہ گئے۔ علیمہ خان کے سوالات پر سلمان اکرم راجہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ سیاسی کشیدگی کے بعد سلمان اکرم راجہ نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپ کے اندر علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بائیکاٹ کے باوجود علی بخاری کو بانی کے پاس کیوں بھیجا گیا، علیمہ خان کا ایسا کہنا تھا، جس پر سلمان اکرم راجہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ کہانی اے بی این نیوز تک موصول ہو چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کل بانی پی ٹی آئی سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ میری وکالتی خدمات بلا معاوضہ حاضر رہیں گی۔ آج ایسا واقعہ ہوا جو اب مجھ سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں، فکری و معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جاگیردار نہ مل اونر۔ ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا، کوئی ملال نہیں۔ اپنی بھرپور وکالت کو پس پشت ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا۔ پچھلے منگل علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے میں نے بانی پی ٹی آئی سے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے سبکدوشی کی درخواست کی تاکہ قانونی امور پر توجہ دے سکوں، مگر خان صاحب نے یہ درخواست منظور نہ کی۔ ان کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ 9 مئی کیسز کی بات کریں گے۔ فیصل آباد میں 9 مئی کو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں سنا دی۔ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، اسماعیل سیلا سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو بھی 10 سال کی سزا۔ فرا آغا، کمل شوزیب، رائے حسن نواز، احمد چٹھا کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ فواد چودھری، زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا۔ انصر اقبال، بلال اعجاز، شیخ راشد شفیق، رائے مرتضی اقبال، اشرف سونا، مہر جاوید، شکیل نیازی کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ 59 ملزمان کو 10 سال، 16 ملزمان کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ بھارت کی جانب سے 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ کیا گیا۔ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دی۔ بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے وزارت خارجہ سے رابطہ کر کے معلومات دی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق بھارت نے 24 اگست کو سیلاب کی وارننگ سندھ طاس کمیشن کی بجائے سفارتی چینل سے دی۔ پاکستان نے اعادہ کیا، بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ گزشتہ رات بھارت کی جانب سے دریائے توی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا۔ گزشتہ رات بھارت کی جانب سے مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کے بعد پہلا بڑا رابطہ کیا۔ بھارت نے مئی میں پاکستان سے ہونے والی جنگ کے بعد یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق دریائے جہلم، چناب، راوی، ستلج اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانے کی صورتحال ہے۔ دریائے چناب میں آئندہ 24 گھنٹوں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ دریائے توی سے آنے والا سیلابی ریلا گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور جھنگ سے ملکہ علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,27,000 اور اخراج 1,09,000 کیوسیک۔ جناب خانقی میں پانی کی آمد 1,28,000 اور اخراج 1,21,000 ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں بھی فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ بونیر کے علاقے کوگن پلواڑی میں افسوسناک حادثے میں 2 خواتین اور 1 بچہ جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گاڑی تقریباً 300 فٹ نیچے گری، جس میں 6 سے 8 افراد سوار تھے۔ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو چکی اور امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ حادثے میں 2 خواتین اور 1 بچہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی۔ حالیہ مونسون بارشوں کے دوران ناتا خان گوٹ میں 2 بھائیوں کے کرنٹ لگنے سے ہلاکت کا ذمہ دار سی او کے الیکٹرک اور دیگر کو قرار دے دیا گیا۔ پولیس نے کے الیکٹرک کے اعلیٰ افسران کے خلاف درج مقدمہ کی ابتدائی اطلاعی رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے لڑکوں کو ابالے سلطان کی مدعیت میں شاہ فیصل کالونی تھانے میں مقدمہ درج کیا۔
जिसमें गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की गई। करंट लगने से 10 साल सराज और 20 साल मुराद जाँ बाक हो गए। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के बाद रेबीज में मुब्तला मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। इंतकाल कर जाने वाले मरीजों में से 3 अफराद का इलाज जो है वो जिना अस्पताल, जबकि दीगर 3 मुतासर अफराद का इंडस अस्पताल में इलाज जारी है। ये अमवात मई 2025 से अगस्त के दौरान हुई। रवा साल अब तक जिना अस्पताल में रेबीज के 22 8 और इंडस अस्पताल में 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। रेबीज से अमवात की मजमूई तादाद 14 हो चुकी और आदादुशुमार के मुताबिक 2025 के आगाज से अब तक कराची में कुत्ते के काटने के 22,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके। माहिरीन सेहत का कहना है कि रेबीज इलाज मर्ज है और ये भी कहा कि इससे बचाव का वाहिद मौसर जरिया बर वक्त वैक्सीनेशन है। शहर में वैक्सीन की कमी और आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतज़म अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहान गनी और दीगर मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन किसी भी वकील ने वकालतनामा जमा नहीं कराया। फरहान गनी ने अदालत में बताया उन्होंने कोई वकील मुकर्रर नहीं किया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस पर तशद्दुद का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मुद्दई के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का काम जारी था। पहले तल्ख कलामी हुई, फिर मुलजिमान की जानिब से मुबैना तशद्दुद किया गया। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि 28 अगस्त को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ मुलजिमान को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रोड कटिंग की मद में खर्च की गई अरबों रुपए की रकम की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कराची की 20 टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सुई गैस की जानिब से रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें न्यू कराची को सबसे ज्यादा 3 अरब 55 करोड़ रुपए मिले। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में इस्तफसार किया। रिपोर्ट में बेशतर रोड्स मुकम्मल होने का दावा किया गया, लेकिन किसी जगह रोड दिखाई नहीं देती। लियारी टाउन को 1 अरब 2 करोड़, जिना टाउन को 73 करोड़, मलिर टाउन को 62 करोड़, जबकि चुनेसर और सदर टाउन को 26 करोड़ रुपए मिले। सिंध हुकूमत का कहना है कि रोड कटिंग की मद में मिलने वाले 14 अरब रुपए की रकम से टाउन को रोड्स बनाना होंगे। ये रकम हड़प नहीं होने दी जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने गुलशन हदीद का दौरा किया और पानी की फराहमी के लिए 2 नई लाइनों के काम का जायजा लिया। इस मौका पर मेयर कराची ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया की गफलत के बायस इलाके के अवाम तवील अरसे से पानी से महरूम थे। उनका कहना था कि चंद अफराद की हरदर्मी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची की क़यादत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया आइंदा दिनों में शहर के मजीद इलाकों में पानी की नई लाइनों का काम शुरू किया जाएगा। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को हिदायत की कि काम 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को जल्द रिलीफ मिल सके। बैक यहाँ आपको बताएं, बानी पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल समेत 8 अफराद के नाम दरख्वास्त में शामिल हैं। दरख्वास्त में ASP ज़ैनब, SHO एजाज को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक बानी पीटीआई को वज़ीर आला पंजाब की इमा पर जेल में कैदी के हुकूक तक नहीं दिए जा रहे। बानी पीटीआई के सेल में रोशनी तक नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के अहल खाना को मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी जाती। बानी पीटीआई को अंधेरे में रखा जाता है। बानी पीटीआई के वकील ताबिश फारूक ने CPO रावलपिंडी को दरख्वास्त दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तालुका रतो डेरो के गांव राहूजा का दौरा किया। वफ़द ने सलाम तासीन की तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने घरों के मालकाना हुकूक खवातीन में तकसीम किए। CO खालिद महमूद शेख ने ब्रीफिंग में बताया जिले में 1,22,000 में से 90,000 घरों की तामीर जारी, जबकि मुस्तैकीन में हजारों सोलर किट्स तकसीम की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में दोगली पॉलिसी तरक करे। मरियम नवाज को बैरूनी दौरों की इजाज़त देना और अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान से बातचीत से रोकना खुला तजाद है। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को बैरूनी दौरों की इजाज़त है, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी अफगानिस्तान के साथ राब्ताकारी का पूरा हक हासिल है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा हमारे सूबे के अवाम अमन चाहते हैं और उसके लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला बराह रास्त अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। हमने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए बाकायदा TORs विफाक को भेजे। इन TORs पर अब तक विफाक ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ़द के अरकान से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। उन्होंने कहा कौमी मफाद पर हमला करने वाले पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमलावर हो गए।
25 साल बाद और पहली बार खतून वज़ीर आला के दौर जापान के खिलाफ शर्मनाक मुहिम मुल्क दुश्मनी की इंतहा है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली फहरिस्त में दिए गए नाम जापान का दौरा करने वाले वफ्द में शामिल नहीं। सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा दीगर अपने अखराजात अपनी ज़ाती जेब से अदा किए। जापान से पाकिस्तान के ताल्लुकात के एक नए दौर के आगाज़ पर झूठ के पुजारियों को बहुत तकलीफ है, जबकि हर मुहिब वतन इस पर खुश है। उन्हें तकलीफ है कि जापान की शहरी तरक्की, टेक्नोलॉजी और नौजवान की हुनरमंदी के मंसूबे शुरू करने की तरफ पेशरफ्त क्यों हो रही है। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी जलने वालों का मुंह काला ही होता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। हुकूमती रुकन औरंगजेब और मुशीर सेहत एहतशाम अली में तल्ख कलामी। रुकन असम्बली औरंगजेब का कहना था डीएचओ ने भर्तियों के एवज भारी रिश्वत ली। भर्तियों के दौरान उम्मीदवारों से मोबाइल नंबर भी लिए ताकि बाद में उनसे डीलिंग कर सके। अवाम ने मुझे डीएचओ के खिलाफ शिकायत की। अवाम ने मजबूरन डीएचओ ऑफिस को ताले लगाए। डीएचओ के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, रुकन असम्बली के पास कोई सबूत है तो सामने लाए, हम कार्रवाई करेंगे। अपने ज़ाती मसाइल के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। शकरगढ़ में देवलीप में नाला डेक से भारतीय साख्ता बारूदी सुरंग बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी सुरंग को नकारा बना दिया। बरामद सुरंग भारतीय साख्ता और 18 पाउंड वजनी है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारों ने निगरानी सख्त कर दी है। शकरगढ़ देवली में नाला डेक से भारतीय साख्ता बारूदी सुरंग बरामद हुई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी सुरंग को नकारा बना दिया। बरामद सुरंग भारतीय साख्ता और 18 पाउंड वजनी है। हुकाम का ऐसा बताना है। खैबर पख्तूनख्वा में नाक़िस कारकर्दगी के बायस मुतअद्दिद सरकारी कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। इब्तदाई मरहले में सूबे के 55 कॉलेजेस निजी शोबे के सुपुर्द किया जाएंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम कॉलेजेस की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और हतमी मंजूरी के बाद इन्हें प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा। एबटाबाद, बन्नू, बटग्राम, डेरा इस्माइल खान, हंगूक, करक, कोहाट, कोहिस्तान और अक्सई वजीरिस्तान सवाबी समेत कई असलाह के कॉलेजेस इस फहरिस्त में शामिल हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस फरीदुल्ला शाह कहते हैं मकसद तालीमी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना और इस हवाले से मुशावरत जारी है। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता का हंगामा खेज इजलास सनाउल्लाह मुस्तकील की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात पर कड़े सवालात उठाए गए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने हॉकी फेडरेशन पर संगीन इल्जामात लगाए। उनका कहना था कि फेडरेशन ने फंड्स खुर्द-बुर्द किए और गैर मुतल्लिक़ अफराद को टूर्स पर ले जाया गया। कमेटी ने सदर PHF तारिक बुगटी की तकर्री पर भी सवाल उठाया और मामला वजारत कानून और अटारनी जनरल को भेज दिया। फैसला हुआ कि अगर नामजदगी गैर आइनी करार पाई तो तारिक बुगटी को ओहदा छोड़ना होगा। तारिक बुगटी ने इजलास को बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने 3 करोड़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 6 करोड़, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए फंड्स फराहम किए। राना मुजाहिद ने बताया कि पाक फौज के ताउन से पहली बार पाकिस्तान हॉकी लीग कराने की तैयारी है, ताहम इनके मुताबिक लीग के लिए मुनासिब विंडो ताहाल नहीं मिली। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।